Right now we have three participants, Adhish, Utkarsh, and Vibhuti. Utkarsh Mishra, please अपने वीडियो ऑन कर लें. ओके, तो भगवत गीता का सेशन आज एक दिन लेट हो रहा है, राइट? मंडे को होना था पर आज हो. ओके, तो कैसा गया आपका प्रीवियस वीक? हाउ वाज इट? टाइप इन द चैट बॉक्स. टाइप इन द चैट बॉक्स. कैसा रहा आपका प्रीवियस वीक? Okay, so the participants are joining. Very good. Okay, that's good. विभूति शर्मा, उत्कर्ष मिश्रा. शायद आपको पता चल गया होगा ना, राइट, कि हमारे बैचेस मर्ज हुए. क्या सुनो, पता आपको ये हमारे बैचेस मर्ज हुए हैं. तो अभी ये जो आपका जीवन वाला बैच था, इसमें G2 भी है ना? तो नए बच्चे भी देखने को मिलेंगे आज हमें, जो बेसिकली G2 में थे, राइट? ओके, अपने सेशन को स्टार्ट हम कैसे करेंगे सभी को पता होगा, है ना? बाय चैंटिंग, राइट? तो चैंट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे. फाइन. तो आप सभी म्यूट पर रहकर, ओके, जिनके पास बीट्स है बीट्स पर करें, जिनके पास नहीं है वो हैंड्स फोल्ड कर लें, आईज क्लोज कर लें, है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैंटिंग. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. ओके, आज बच्चे दिख रहे हैं क्योंकि पिछले लास्ट वीक तो बच्चे दिखे नहीं थे। कुछ तो बैच मर्ज हो चुका है इस वजह से, राइट। तो जीवन सीनियर के बच्चे तो मुझे जानते हैं। एज फार एज G2 सीनियर इज कंसर्न, so I'm your Bhagavad Gita teacher and my name is Neha. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने किया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट। जो बच्चे लास्ट सेशन में प्रेजेंट नहीं थे, आई होप उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली होगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एक सेशन मिस हो जाता तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख कर आना, तभी आगे कंटिन्यू करने का फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। ओके ओके, स्टार्ट कर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भगवत गीता का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली कृष्णा ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था भगवत गीता में, तो वो किस टॉपिक पर बेस्ड था, वो सारा का सारा ज्ञान क्या था, वो उसकी थीम क्या थी, कोई बताएगा? मतलब किस चीज में अर्जुन कंफ्यूज थे और किस चीज का ज्ञान उनको मिला था कृष्ण से? What was that? Type in the chat box, please. Type in the chat box. चैट बॉक्स में टाइप करो, वो किसके अराउंड हमारा पूरा थीम भगवत गीता का रिवॉल्व करता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट वाज द टॉपिक? कैन एनीवन गेस? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो योर आंसर। किसी का आया नहीं अब तक? आ गया, ओके। अभिलाषा तांबे, जस्ट वेट। यस, अभिलाषा। मैम चैट बॉक्स में टाइप करना है, लेकिन है ना वहाँ पे आपके दो नाम आ रहे हैं, मतलब दोनों नेहा नेहा ही करके आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दो टाइप। मेरे पास ही आएगा जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते, ठीक है। ओके, तो हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, मैं ये बोल रही थी कि थीम क्या थी। तो किसी ने बताया है मैम के, जस्ट वेट, मैम के बिना डरे वे अपने शत्रु के साथ लड़े। यस अभिलाषा,
गुड गेस, इंटरेस्टिंग, थैंक यू। ओके, तो अभिलाषा ने आज के सेशन का गेस कर लिया और वो सही है, ठीक है। सो तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अबाउट कर्मा, राइट। KARMA, कर्मा। कर्मा के बारे में आज का सेशन है हमारा, ठीक है। कर्मा से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कर्मा? इन वन वर्ड, इन वन वर्ड, टाइप इन द चैट बॉक्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कर्मा? व्हाट इज कर्मा? कर्मा है क्या? चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे अपने रिस्पॉन्सेस बताइए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। और अभी यस सिद्धार्थ, यस सेक्शन पार्टिसिपेंट काफी है लेकिन अभी भी वीडियोस ऑन नहीं है। उत्कर्ष, सिद्धार्थ, हर्षल, गुणमेय, अथर्व, मोहन, अधीश, सैमसंग SM M2 डैश डैश डैश, कौन है ये पता नहीं। तो प्लीज अपना एक बार नेम रीनेम कर ले और अपना पहचान बताएं। ओके, आउट पास सेक्शंस एंड थॉट्स। यस, सैमसंग SM M2 डॉट डॉट डॉट। हैंड रेस कर रखा है पर वीडियो नहीं है। ओके, our actions and thoughts are past action and thought. Action, karma means action, right? Okay. Let me share my screen. ठीक है, आप लोग मेरे को बता देना कि मेरा स्क्रीन सभी को विजिबल है या नहीं। विजिबल सभी को है? ओके फाइन, ठीक है। मिस्ट्री ऑफ कर्मा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मिस्ट्री ऑफ कर्मा। चलो मिस्ट्री की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा कर्मा का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कर्मा बेसिकली एक मिस्ट्री ही है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है कर्मा का कॉन्सेप्ट, लेकिन हम उसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि हम उसका पूरा बेस समझ लेंगे, वो इम्पॉसिबल है, वो भगवान ही समझ सकते हैं। पर जो भी लिटिल बिट गीता में हमें समझाया गया, हम उसके माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइन। सो आर यू ऑल रेडी फॉर टुडे सेशन? सभी रेडी है आज के सेशन के लिए? ओके फाइन। सो कर्मा बेसिकली क्या है? कर्मा मीन्स एक्शन और फिजिकल एक्टिविटीज, राइट। कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, सुबह उठने से लेकर जो हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है रात को सोने तक, जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो सभी हमारी कर्मा के अंदर इंक्लूड होती है, राइट। और आपने एक चीज बोली एक्शन, ठीक है, एक्शन सही है, बट एक्शन भी हमारे वर्ड्स के थ्रू भी होते हैं, राइट, हमारे थॉट्स के थ्रू भी होते हैं, और फिर वो रियल एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। देखिए, जब भी कोई एक्शन हम करते हैं ना, तो उसका सबसे पहला जो बीज, उसका जो सीड होता है ना, वो माइंड में प्लांट करते हैं, एक थॉट आता है, राइट। उसी थॉट से हमारी प्लानिंग बनती है और उसी प्लानिंग से हम एक्शन को, किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज को करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप रात को अभी खा पी के सोने वाले हो, तो नेक्स्ट डे के लिए आपके माइंड में प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी कि मुझे मॉर्निंग में इस टाइम उठना है, मुझे फिर नहा धो के सम चैंट करना है, देन मेरे को स्कूल का बैग वगैरह लगाना है, देन मुझे स्कूल जाना है, फिर मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपको उसके हिसाब से माइंड काम करेगा, ठीक है। और जो वर्किंग होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं इन आर डे टू डे लाइफ, वो हमारा होता है कर्म, राइट। अब आपको क्या लगता है कि कर्मा के भी टाइप्स होते होंगे? डू यू थिंक सो? क्या लगता है आपको? हर एक चीज के टाइप होते हैं, राइट।
तो उसी तरीके से हमारे कर्मास के भी टाइप होते हैं। तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं हम उनको अभी स्क्रीन पर देखेंगे। फाइन, तो आप स्लाइड पर कर्मा की डेफिनेशन देख सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में गिवन है। क्या है? ऑल द एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म, बेसिकली इट इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटीज। पर फिजिकल एक्टिविटीज पर आने के लिए वो जो थॉट होता है, वो जो सीड होता है ना, वो हमारे माइंड में पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो एक्शन होता है ना, वो माइंड में होना शुरू हो जाता है, पर हमें उसका पता नहीं चलता। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बारे में पहले हम एक थॉट प्रोसेस रखते हैं, एक विचार रखते हैं, एक सोच रखते हैं, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले एक्शन जहां पर होता है ना, वो हमारे माइंड में होता है, राइट? और फिर वो एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट हो। ठीक है, किसी ने सोचा है कि कल मेरा एग्जाम है, मुझे ये थ्योरम पढ़नी है, राइट? मुझे ये प्रैक्टिकल, वो वाला प्रैक्टिकल देखना है, मुझे इसका डायग्राम देखना है। तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने उसको मन में सोचा, तो पहले एक्शन मन में हुआ, उसके बाद वो रियलिटी में आपके सामने, राइट? तो इस तरीके से हमारा एक्शन होता है, जिसको हम कर्मा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कर्मा। अब हमारे कर्मा के 3 टाइप्स होते हैं, और वो क्या क्या है? सबसे पहला टाइप है सुकर्म। ठीक है, कर्म एंड सुकर्म बोथ आर सेम, या हम उसको कर्म भी बोल सकते हैं, हम सुकर्म भी बोल सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है सुकर्म, सेकंड टाइप है विकर्म, एंड द थर्ड टाइप इज अकर्म। ठीक है, अभी 3 टाइप्स क्या है, इनको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है सुकर्म। सुकर्म का मतलब होता है अच्छी एक्टिविटीज करना। ठीक है, अच्छे एक्शंस परफॉर्म करना, अच्छे कर्म करना, उसको हम बोलते हैं सुकर्म। और मतलब जितनी भी हमारी अच्छी एक्टिविटीज होती है जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, ऐसा नहीं है कि किसी को सिगरेट पीना पसंद है तो वो उसके लिए अच्छी एक्टिविटीज मानी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अपने मन के अकॉर्डिंग लोग अच्छी एक्टिविटी बना लेते हैं। अब अगर किसी को गेम खेलना पसंद है तो वो उसके लिए अच्छी एक्टिविटी है, बट वो अच्छी एक्टिविटी नहीं है, राइट? अगर हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो वो अच्छी एक्टिविटी नहीं है। हमारा मन क्या कहता है? हमारे मन के हिसाब से तो हम कुछ भी कर ले, तो हम उसको अच्छी एक्टिविटी में क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छी एक्टिविटीज वही है जो स्क्रिप्चर्स में बेस्ड है, जो स्क्रिप्चर्स में प्रमाणित की गई है, जो स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं, जो हमें शास्त्र बताते हैं, वही हमारी अच्छी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, जैसे कि किसी की मदद करना, ठीक है, सच बोलना, किसी को धोखा ना देना, किसी को परेशान ना करना। लाइक एनिमल किलिंग होती है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स को मार के कंज्यूम करते हैं ना, तो वो भी एक तरह से बैड एक्टिविटी है। ठीक है, तो मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे किसी को में कोई हार्म ना पहुंचे, ठीक है, जिससे सब हैप्पी रहे, खुश रहे, सराउंडिंग्स हम अच्छे से रखे, अपने आसपास को अच्छे से रखे, और गरीबों की मदद करना, सच बोलो, तो ये सारी एक्टिविटीज जो हमारे वेदों में प्रिस्क्राइब्ड है, ये हमारी होती है गुड एक्टिविटीज, और ये आती है सुकर्म के अंडर। सुकर्म सभी को क्लियर है? ऑल गुड एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छे कर्म जो भी हमारे मम्मी पापा हमें समझाते हैं या जो भी हमें बताते हैं, वो सारी होती है हमारी सुकर्म के अंडर, वो हमारा आता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है विकर्म। अब विकर्म क्या है? विकर्म होती है बैड एक्टिविटीज, जो हम उल्टे पुल्टे काम करते हैं। ठीक है, वो आता है विकर्म के अंदर। किसी से झूठ बोलना, चोरी करना, ठीक है, किसी को हर्ट करना, किसी को हार्म पहुंचाना। ठीक है, तो जैसे स्मोकिंग करना अच्छी आदत नहीं है, जुआ खेलना अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, पता है हमें गलत है। ठीक है, फास्ट फूड खाना भी गलत ही होता है, लेकिन लोग अपनी जुबान की ज्यादा सुनते और अपने दिमाग की कम सुनते, तो वो जुबान की सुन के खा लेते हैं, जबकि वो भी इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी नहीं होती। क्यों? अपने टंग की सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करते हैं? वो नॉन वेजिटेरियन भी खा लेते हैं, जबकि वो है गलत, वो सरासर गलत। ठीक है, तो बैड एक्टिविटीज विकर्म होता है, गुड एक्टिविटीज सुकर्म होते हैं। और एक गुड एक्टिविटीज बैड एक्टिविटीज होती क्या, अगर हमें नहीं पता तो हमें स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, हमें उससे क्लियरली पता चलता है क्या गुड एक्टिविटीज और क्या बैड एक्टिविटीज। और अगर आप गुड एक्टिविटीज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और बैड एक्टिविटी करते हो तो बैड रिजल्ट। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम, राइट?
तो ये कर्मा का कॉन्सेप्ट एकदम भगवान ने है ना बहुत क्लियरली बता रखा है। ठीक है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा मिल जाएगा। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू योर इंटेलिजेंस। ठीक है, और इंटेलिजेंस हमें सही गलत कब बताती है? जब हम इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बना, बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, राइट। तो ये सारी चीजें ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एक चीज दूसरी चीज से इंटरकनेक्टेड आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो क्या ये दोनों टाइप सभी को समझ में आए हैं? प्लीज शो मी योर थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। निकुंज समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? आपने ऐसे किया है, क्या समझ में नहीं आया? पूछो, जस्ट वेट। यस निकुंज। मेरा नेट नहीं था तो वो खुद लीव हो गया था, तो ये विकर्मा मेरा मिस हो गया था। अच्छा, विकर्म होते हैं बैड एक्टिविटीज, बुरे जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं वो होते हैं विकर्म। ठीक है, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो, झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, किसी को हर्ट करना, गुस्सा करना, ठीक है, लालच करना, है ना। तो ये सारी चीजें बैड एक्टिविटीज के अंडर। फाइन, ओके। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप पर, दैट इज अकर्म। अच्छा, सुकर्म अच्छा कर्म, विकर्म बुरा कर्म। अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। अभी जो थर्ड टाइप है अकर्म, ये क्या हो सकता है? क्या लगता है आप, क्या हो सकता है? थोड़ा कुछ गेस करोगे? क्या है ये अकर्म, क्या हो सकता है आपकी नॉलेज में? क्या हो सकता है? कैन एनीवन गेस? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो। जस्ट वेट। हाँ जी, टाइप इन द चैट बॉक्स अगर किसी को आइडिया है कि अकर्म क्या होता हो। ओके, नो 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 अभिलाषा, आप गेस कर रहे हो बट आपका गेस अभी लगा नहीं है अच्छे से। ओके चलो मैं बताती हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा अकर्म। ठीक है, जिसकी वीडियो ऑन है प्लीज वीडियो ऑन कर ले। ठीक है, जिसके भी वीडियो ऑन नहीं है अपने अपने वीडियोस को ऑन कर ले, मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े एक ही का नाम। ठीक है, तो अकर्म क्या है? अकर्म ना ही गुड कर्मा है ना ही बैड कर्म। ठीक है, ना ही गुड एक्टिविटीज अकर्म में आती है ना ही बैड एक्टिविटीज अकर्म में। तो अकर्म में आती क्या है? अकर्म में बेसिकली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आती। ठीक है, लाइक चैंटिंग, जो कि हम आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे वन आपको करना सिखा रहे हैं, आपको डेली करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप घर पे नहीं कर रहे तो सेशन में आपको कराई जा रही है। ठीक है, अकर्म क्या है? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना, लाइक मेडिटेशन, लाइक रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, लाइक चैंटिंग। तो ये सारी चीजें आती है अकर्म के अंदर। पर सॉरी, अकर्म का ऐसा कोई रिजल्ट ही नहीं होता। जैसे सुकर्म का रिजल्ट होता है अच्छा, राइट, विकर्म का रिजल्ट होता है बुरा। तो अकर्म का रिजल्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है तो हम अकर्म क्यों परफॉर्म करें? क्योंकि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर हमें किसी चीज से कुछ मिलता तो हम वो परफॉर्म करते, अदरवाइज हम नहीं करते। तो यस आदेश, यू वांट टू से समथिंग? ओके, यस आप मुझे आदेश। बोलना है। वेट 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 वेट, यस यस आदेश, अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे बोलना है कि द रीजन व्हाई वी डू कर्मा एक्टिविटीज इज सो दैट वी कैन बिकम क्लोजर टू गॉड एंड अचीव मोक्ष। यस, डेफिनेट, एग्जैक्ट, राइट। तो बेसिकली अकर्मा हम क्यों करते हैं? अकर्मा हम इसलिए करते हैं ताकि हम इस बर्थ और डेथ की लाइफ साइकिल, ये जो साइकिल है जिसमें हम सब फंसे हुए इस बर्थ और डेथ की साइकिल को हम क्रॉस कर पाए, उसके लिए होता है अकर्मा। ठीक है, ये मत सोचना कर्मा करोगे तो पैसों की बरसात हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट क्या होता है, एक चीज होती है जैसे कि हमने बुरे कर्म किए होते हैं। ठीक है, तो बुरे कर्मों के जब बुरे फल अगर हमें मिलने वाले होते हैं, और सोचो हमने इतने बुरे कर्म करे और एक्सट्रीम फल है ना हमारा वेट कर रहे हैं कि कब वो घड़ी और कब हमें उन बुरे कर्मों का बुरा फल मिले। तो अगर हम अकर्म करते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो एक बेनिफिट होता है कि जो हमारे बुरे रिएक्शंस जो हमें मिलने वाले होते हैं ना वो थोड़े से कम होकर मिलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं, अगर किसी पहाड़ से ठोकर लगनी थी ना तो किसी पत्थर से ठोकर लगेगी, इतना हमारा बचाव हो जाता है ड्यू टू आर परफॉर्मिंग दी अकर्म। अकर्म करने से हमारा भगवान बचाव करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसे नहीं बैड रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जो बैड रिजल्ट्स आपकी बैड एक्टिविटीज के कारण आपको मिलने वाले होंगे ना, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये हमारा बेनिफिट होता है अकर्मा करने से। और बर्थ टू डेथ की साइकिल से रिलीज होने के लिए भी हम अकर्मा करते हैं, ठीक है। तो वो होता है अकर्मा। आप देख सकते हो स्लाइड पे, अकर्मा क्या है, नीदर गुड नॉर बैड एक्टिविटीज, ठीक है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है जो हम परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने वर्ड्स वाला एक सेशन लिया था, भगवत गीता का 2.40 श्लोक था, नेहा भी क्रम नाशो अस्सी प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भय। राइट, इसका मीनिंग क्या था कि अगर हम जरा सा भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते ना तो वो कभी भी शून्य नहीं होता, वो कभी भी जीरो नहीं होता, और वो हमें बड़े से बड़े डेंजर से भी बचाने की शक्ति रखता है। तो दैट इज योर अकर्म। इसलिए हम सभी को अकर्मा करना चाहिए। सुकर्म और विकर्म तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमें अकर्मा भी करना चाहिए। तो ये तीनों टाइप सभी को क्लियर है, सुकर्म, विकर्म एंड अकर्म। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्म। हमने साइंस में बहुत कुछ पढ़ा है ना, लॉ ऑफ मोशन पढ़े, और पता नहीं कितने कितने हमने लॉ पढ़ के आए हैं, या जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्मा के लॉ की। अब कर्मा, ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ना, इसके कानून क्या है। लॉ का मतलब क्या होता है, कानून, ठीक है। तो इसके लॉस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कर्मा का लॉ होता है वो है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी कर्मा करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वही वैसा ही मिलेगा जिस तरह का आपने कर्मा किया हो, उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। जैसा कर्म वैसा रिजल्ट, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट, बुरा कर्म करोगे तो बुरा रिजल्ट। तो पहला लो कर्मा का हमारा ये वो क्लियर है सभी को, इजी है, इजी लैंग्वेज में, राइट। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, उसका रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। रिएक्शन ऐसा नहीं होगा कि ना मिले, डेफिनेटली मिलेगा। तभी तो भगवान फ्री रहते हैं। भगवान एकदम भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं ना किसी की भी लाइफ की जो इंडिपेंडेंस है ना, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि भगवान ने क्लियरली मेंशन कर दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं क्यों दुखी हूँ, मैं मुझे आराम से फ्री रहना है, तो भगवान फ्री रहते। हम अच्छा करेंगे अच्छा भोग लेंगे, बुरा करेंगे बुरा भोग लेंगे। भगवान का तो कोई रोल ही नहीं, भगवान ने पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे रखी है। ये हम पर है कि हम उस इंडिपेंडेंस को कैसे यूज या मिसयूज करते हैं, राइट। उसके बाद सेकंड है, कर्मा इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब है कि कर्मा किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। कर्मा का कोई फेवरेट या फिर कोई नॉन फेवरेट नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आग है, अग्नि, फायर, राइट। अब जो अग्नि है वो है ना सभी के साथ समान भाव में रहती है। अगर किसी बड़े का, जैसे मम्मी है, जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती है, तो वो बहुत बार होता है कि थोड़ा सा मम्मी का हाथ जल जाता है, राइट। ये है ना बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। मम्मी का हाथ जल सकता है खाना बनाते वक्त। और कभी कभी कोई बच्चा जो जिसको कुछ कुकिंग करना नहीं आता, वो किचन में घुस गया सडनली, और उसने क्या किया, उसने लाइटर उठा लिया, उसने क्या किया, लाइटर वो गैस ऑन किया, और उसको समझने अभी वो नया नया था कॉन्सेप्ट उसके लिए फायर का, तो उसने क्या किया, उसमें हाथ डाल दिया देखने के लिए है क्या, ठीक है, उसको नॉलेज नहीं थी। अब आप मेरे को ये बताओ कि अग्नि ये बोलेगी कि मम्मी बड़ी थी तो मम्मी का हाथ जला दे, तो ये बच्चा तो छोटा सा इसका हाथ नहीं जलाता। अग्नि तो ऐसा नहीं करेगी, राइट। तो कर्मा क्या होता है, कोई भेदभाव नहीं करता। बच्चा है, नॉलेज नहीं है, मोमबत्ती के आगे उसने मोमबत्ती की जो लो है उस पे उंगली रख दी, तब भी उसका हाथ जलेगा। कोई बड़ा होगा तब भी उसका हाथ जलेगा, राइट। तो कर्मा किसी को बख्शता नहीं है, राइट। आप देख सकते हो स्लाइड पे, फायर है,
ये वो भेदभाव नहीं करेगी कि छोटा सा बच्चा इसको मैं ना चलाऊं, अगर वो अग्नि के पास जाएगा तो वो जले, ठीक है। उसके बाद एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक रेन, ठीक है, रेन का एग्जांपल ले लें। अब रेन आ रही है, बारिश आ रही है, ठीक है, हम चले गए बाहर, ठीक है, और बच्चों को तो जैसे भीगने का वैसे ही शौक होता है, बच्चे तो बिना छाते के चल पड़ते हैं, और बड़े क्या करते हैं, बड़े छाते लेके चलते हैं। तो अब है ना, जो हमारी बारिश है वो भी भेदभाव नहीं करेगी कि बड़ा आ रहा है इसको बचा लूं या छोटा आ रहा है इसको भिगो दूं, नहीं, उसके लिए भी इक्वल है सब, ठीक है। तो कर्मा भेदभाव नहीं करता, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, चाहे वो इतना सा बच्चा हो, चाहे वो इतना बूढ़ा हो, कोई भी, ठीक है, कर्मा के लिए सब एक बराबर होते हैं। उसके बाद तीसरा कानून, तीसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि कर्मा को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, इन द सेंस, सपोज अगर हम एक बहुत ही पाइज इंसान है, पाइज यानी बहुत ही प्योर इंसान है, ठीक है, हम अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे अच्छे कर्म करे, तो एक बार क्या हुआ, अच्छे कर्म करे, करते रहे, फिर एक बार मेरे मन ने है ना मेरे साथ खेलना चाहा, और मैंने क्या किया, एक दिन है ना कोई बुरा कर्म कर लिया, ठीक है, गलती से मुझसे कोई बुरा कर्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच लूं कि भाई मैंने तो ना पूरी जिंदगी अच्छे कर्म करे थे, तो अगर मैं एक आधा बुरा कर्म कर लूंगी ना तो कोई बात नहीं है, भगवान मतलब उसको है ना बख्श देंगे मेरे को, ऐसा नहीं होगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने अगर 100 अच्छे कर्म करे हैं और एक बुरा कर्म करे, तो आप ये मत सोचना कि अच्छे कर्म मैंने ज्यादा कर लिए तो बुरे कर्म का नहीं मिलेगा मेरे को, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा जितना करोगे उतना अच्छा मिलता जाएगा, बुरा जितना करोगे उतना बुरा मिलता जाएगा। तो उसमें आप कभी भी ये मत सोचना कि मैंने तो जिंदगी भर दान किया है या जिंदगी भर मैंने भिखारियों को खाना खिलाया, तो मैं अगर एक आधी बार नॉन वेजिटेरियन खा लेता हूँ तो क्या होता है, होगा, डेफिनेटली होगा। इसलिए हमें हर तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है एक और लाइन उसी के नीचे लिखी हुई है, दैट कर्मा कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने अगर बुरा कर्म किया ना तो मेरे पड़ोसी को उस कर्मा का फल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कर्मा ट्रांसफर नहीं होता है, जिसने किया वो उसी को मिलेगा, ठीक है, आपने किया तो आप ही को मिलेगा। बहुत बार क्या होता है स्कूल में स्पेशल एग्जाम टाइम पे बच्चे आगे पीछे बैठे होते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, तो है ना केस ऐसा होता है, टीचर है ना चीटिंग करने वाले को नहीं पकड़ता, चीटिंग दिखाने वाले को पकड़ लेता है ना, और उसके थप्पड़ मारता है खींच, और फिर अब वो जिसने चीटिंग की होती है वो तो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन जिसने चीटिंग दिखाई है वो पकड़ा जाता है, ठीक है। अब गलती तो उसकी थी जो चीटिंग कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पकड़ा, राइट, और बेचारा दूसरा जो उसकी हेल्प कर रहा था या जो थोड़ा सा अच्छे भाव से उसकी मदद कर रहा था तो उसको पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं है। तो जो चीटिंग करेगा उसी को पकड़ा जाना चाहिए और उसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर रहा हम उसको भी पनिश करें, ठीक है। लेकिन आजकल रिवर्सल होता है, क्योंकि एक दूसरे पे सब उंगली लगा देते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइमलाइट में ले आते हैं कि मैम उसने किया था, मैम इतने ध्यान से देखती नहीं तो मैम किसी को भी पनिश कर देती, ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। लेकिन भगवान की नजरों से कोई नहीं बचता, टीचर तो चलो टीचर है, वो तो ना भी देखे एक आधी बार, लेकिन भगवान सब देखते हैं किसने चीटिंग करी है और किसने दिखाया है, किसने छुपाया, तो भगवान तो सबका एकदम बराबर करते हैं, ठीक है। अच्छा ये कर्मा का कॉन्सेप्ट पता है क्यों है बेसिकली, और ये बात कि अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे ताकि इससे हम एनकरेज रहे कि हमें बुरा कर्म नहीं करना, क्योंकि अगर कर्मा को कॉन्सेप्ट ना हो ना तो हम क्या करें, हम फ्रीली अपने मन से कुछ भी करते, क्योंकि पता है कोई रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। अब हमें ये जब पता लगे कि बुरा करेंगे तो बहुत बुरा हो सकता है, तो हमारे अंदर की डर बैठा रहता है, तो उस डर की वजह से ही हम बुरा कर्म नहीं करते। तो वो डर अच्छा भी है हम सभी के लिए। जब तक हमारे अंदर थोड़ा डर है ना कि भगवान है, पनिश कर सकते हैं, तो तब तक हम क्या करते हैं, हम सही ट्रैक पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें डर की वजह से नहीं करना चाहिए ऐसा, हमें अपने मन से ही अच्छी एक्टिविटीज करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पनिशमेंट मिले, ठीक है, क्योंकि डर कब तक काम आएगा, ज्यादा लंबे समय तक डर काम नहीं आता, तो हमें अपने मन से ही ये करना चाहिए कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा काम करें
ताकि हम भगवान के गुड बुक्स में रहे हमेशा, और भगवान की नजरों में हमेशा हमारी अच्छी इमेज बनी रहे, राइट। दुनिया की नजरों में अच्छा बने से कुछ नहीं होता, भगवान की नजरों में अच्छा बनो, वो बड़ी बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ओके, तो कर्मा का बेसिकली है ना कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। बुरा कर्म करते हो तो पनिशमेंट मिलती है, अच्छा कर्म करते हो तो रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि स्कूल में देख लेते हैं हम, ठीक है, जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते, टीचर क्या करते, पिटाई करते उनकी, या उनके क्या करते, रेड कार्ड इश्यू कर देते कि पढ़ के नहीं आ रहा, ये बहुत बदतमीज है। तो वही है, हम आस पास भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं। और जब हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छा रिजल्ट स्कोर करते हैं, तो घर पे भी इज्जत बनती है, टीचर्स की नजरों में भी इज्जत बनती है, और सोसाइटी में भी नजर बनती है कि वाह उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो वो डिपेंड ही करता है, जैसी एक्टिविटीज वैसा रिजल्ट, राइट। उसके बाद तीन कर्मा, सॉरी, 3 लॉज ऑफ कर्मा हम पढ़ चुके हैं, सुकर, विकर एंड अकर, राइट। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मे बी आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में फेस किया हो, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। पता नहीं आप लोगों ने कभी फेस किया है या कभी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया है, बट ऐसा ना अक्सर देखा जाता है कि लोग बोलते हैं यार ये तो बड़ा बुरा था, इसके साथ अच्छा अच्छा होता रहे, पता नहीं हो क्या, और ये इतना अच्छा था, इसकी पिटाई होती रहती है, ये पिटता ही रहता है, या इसके साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता, जबकि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सभी ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो फेस किया हो, किया आप लोगों ने फेस किया है, कभी ना कभी किया होगा ना, स्कूल में देखा होगा या कुछ ऐसा। जैसे कि अभी भी मैंने वो वाला केस बताया ना आपको, चीटिंग करने वाला पकड़ा नहीं गया, लेकिन जिसने चीटिंग दिखा उसकी पिटाई हो गई, जबकि वो तो मदद कर रहा था, है ना। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, इसका हम आज एक स्टोरी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू पास्ट एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे अब एक एग्जांपल से। अच्छा, स्क्रीन पर 2 बंदे दिख रहे हैं सभी को, दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, हाँ, अरे हाँ 2 पीछे भी है, 4 है, हाँ ने कुल 4 है, ठीक है। लेकिन जो लाइमलाइट में है ना, जो आगे बैठे उनको देखो, ठीक है। अब ये 2 कौन है, अब ये है 2 किसान, ठीक है। कौन है, 2 किसान है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, ठीक है। बहुत ही फेमस नेम है हमारे राम और श्याम, ठीक है। तो अब इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे तो पता होता क्या, दोनों ही किसान होते हैं, ठीक है। अब दोनों ही किसान होते हैं, तो अब इनको क्या करनी होती है, इनको फसल अपनी बनानी होती है। तो अभी सोचते हैं कि चलो ठीक है, सीजन स्टार्ट होने वाला है, चलो खेती करते हैं, और अपनी खेती के लिए वो एक प्लानिंग करना शुरू करते हैं, गेहूं उगाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जो राम है ना, वो बहुत ही मेहनती किसान हो, ठीक है, उसको है ना हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। और जो जो श्याम है, वो भी किसान है, बट वो थोड़ा सा मतलब आराम से ढीला ढाला है कि हाँ हो जाएगा, क्यों इतनी टेंशन लेनी, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल्स में, एग्जाम आता है, कोई तो इतने हाय मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो वाली थ्योरम भी करनी है, मुझे वो वाला डायग्राम भी, उसकी नेमिंग भी देखनी है, लास्ट मिनट तक छूट ना जाए। और जो थोड़ा कैजुअल होते हैं, जिनको 50% में भी मजे आते हैं, ठीक है हो जाएगा कोई बात। तो राम और श्याम का भी ना ऐसे एटीट्यूड होता है, राम होता है एक्टिव और श्याम होता है थोड़ा ढीला। अब क्या करते हैं, राम जो कि एक्टिव होते हैं, वो अच्छा तो बीज लेकर आता है, ठीक है। अच्छा बीज लेकर आता है, उसको अच्छे से बोता है, अच्छे फर्टिलाइजर्स को यूज करता है, समय समय पर पानी देता है, समय समय पर कीटाणुओं से अपने उसकी फसल की रक्षा करता है, तो बहुत ही अच्छे से वो अपनी फसल का ध्यान रखता है। ऑन द अदर हैंड शाम क्या होता है, वो इतना ध्यान नहीं रखता, वो बस ठीक है, जैसे उसको बीज मिला उसने डाल दिया, ठीक है, जैसे उसको फर्टिलाइजर्स मिले उसने वो यूज कर लिए, कभी कभी पानी दे दिया, कभी कभी छोड़ दिया। तो ऐज सच करते करते दोनों अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जब फसल कटने का टाइम आता है, ठीक है,
तो दोनों की फसल रेडी तो हो जाती है, ठीक है। पर राम की फसल होती बहुत अच्छी। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे वन उसने बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दिया था। श्याम की फसल ऐसी होती नॉर्मल सी, इतनी अच्छी नहीं होती। अब क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आपको पता होगा, तो जो किसान होते हैं जब उनकी फसलें कटती है तो वो क्या करते हैं, वो अनेक स्टोरेज टैंक में उसको स्टोर करते हैं, राइट। गेहूं की टंकी सुनी है? यस और नो सुनी है, देखी है? ठीक है। किसान क्या करते हैं, कुछ जो उनकी फसल का कुछ परसेंटेज तो वो क्या करते हैं मार्केट में बेच देते हैं, और कुछ परसेंटेज वो अपने घर में रखते हैं, है ना। घर में भी कैसे, एक स्टोरेज टैंक होता है, एक टंकी होती है हिंदी में जिसको बोले, तो वो क्या करते हैं उसमें स्टोर करते हैं। टंकी अगर आपने देखी हो गेहूं की कैसी होती है, ऊपर से डालते हैं, है ना, ऊपर से डालते हैं, और नीचे से जब हमें गेहूं लेना होता है तो क्या करते हैं, नीचे से है ना एक वो होता है, उसको ओपन करते हैं तो नीचे से गेहूं निकलता है। ये पता है? देखा है ऐसा? देखो, जिसके घर में है ना रेडीमेड आटा आता है उस बच्चे ने शायद ना देखा हो, लेकिन जो किसान का बेटा या जो थोड़ा सा ऐसे वैसे घर से बिलोंग करते उसने पक्का देखा होगा। तो क्या करते हैं, गेहूं ऊपर से डालते हैं और जब लेना होता तो नीचे से निकालते, ठीक है। तो राम की फसल होती है अच्छी, शाम की फसल होती है ऐसी खराब सी, अच्छी क्वालिटी नहीं होती। तो वो क्या करती, ठीक है, जैसा भी गेहूं था राम ने अपनी टंकी में डाल दिया, शाम ने अपनी टंकी में डाल दिया, ठीक है। अब हाँ आदित्य राज, मेरी नानी के घर में, नानी दादा के घर में मिल ही जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब राम और श्याम के इस एक्ट के बाद श्याम को थोड़ा धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि राम की अच्छी क्वालिटी की फसल हुई, उसने बेची मार्केट में, उसको अच्छा प्रॉफिट मिला, और उसने अपने घर में भी अच्छा स्टोर किया, और शाम को वो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। क्यों? शाम ने इतना अच्छा काम ही नहीं किया। अब शाम हो जाता थोड़ा एक्टिव कि नहीं भाई बहुत हो गया, मैंने तो गड़बड़ी कर दी, अब नया सीजन जब आएगा तो मैं अच्छे से मेहनत करूंगा। तो अब क्या होता है, अब है ना रोल्स है ना बदल जाते हैं। राम ने जिसने मेहनत करी थी वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है कि चल ठीक है मेरी तो अच्छी मेहनत हुई थी, अब मैं एक साल थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊंगा तो काम चल जाएगा। शाम हो जाता है एक्टिव। अब क्या करता है, शाम अच्छी फसल अगले सीजन में ग्रो करता है और राम ऐसे ही ठीक ठाक ग्रो करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से वो फसल काटते हैं, शाम की इस बार अच्छी हुई और राम की इस बार थोड़ी ठीक ठाक हुई, अच्छी नहीं। तो फिर क्या किया, शाम ने अपनी टंकी में वो सारा गेहूं डाल दिया। अब देखो पिछले साल का भी गेहूं था उस टंकी में, खत्म नहीं हुआ था। अब शाम ने पिछले सीजन का जो गेहूं था वो तो बैड क्वालिटी का था, अब उसी के ऊपर उसने अच्छी क्वालिटी का डाल दिया। और राम ने क्या किया, पिछले सीजन में अच्छी क्वालिटी का उसने अपने टंकी में गेहूं स्टोर किया, और इस बार उसकी अच्छी नहीं हुई थी फसल तो उसने इस बार बैड क्वालिटी का बीज डाल दिया। तो अब देखने वाले को तो क्या दिखेगा कि भाई श्याम ने तो बहुत मेहनत करी थी तो श्याम को तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। और राम ने इस बार कुछ किया नहीं तो राम को बुरा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब जब वो उस वीट को यूज करेंगे, जब वो टंकी से नीचे से उस लिड को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले तो पिछले सीजन का ही गेहूं आएगा, राइट, क्योंकि टंकी में तो पिछले सीजन का गेहूं भी स्टोर है। इस बार जो नया गेहूं है वो तो पिछले सीजन के गेहूं के ऊपर है। तो देखने वाले को तो ये है कि शाम ने मेहनत करी है, अच्छा शाम को अच्छा मिलना चाहिए, राम ने की है अच्छी नहीं तो राम को ऐसी। लेकिन जब वो गेहूं निकालेंगे ना तो राम के पास वो भी अच्छा गेहूं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके पिछले सीजन की मेहनत का नतीजा है, और श्याम के पास अब भी खराब गेहूं। क्यों? क्योंकि उसके पिछले सीजन की मेहनत का नतीजा है। तो इससे हम ये देख सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम चाहे कितने अच्छे कर्म कर लें, लेकिन जब तक हमारी पास्ट में की हुई एक्टिविटीज के रिजल्ट्स मिलने खत्म नहीं होते ना, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने अगर आज अच्छा किया तो हमें अच्छा मिल जाए। नहीं, पहले हमें पिछले टाइम के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तब जाके आज के अच्छे कर्म आगे चल के हमें अच्छा रिजल्ट दे। तो कंक्लूजन ये है, अगर हम किसी को देखते हैं ना कि वो बहुत सफर कर रहा है लेकिन वो तो बहुत अच्छे कर्म करता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है वो अभी अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन पहले के कर्म तो उसके अच्छे नहीं है ना, तो पहले तो उसको पिछला क्लियर करना पड़ेगा। पिछला बैलेंस पहले क्लियर करेगा तभी तो नया बैलेंस आएगा उसके आगे। तो इसका सिंपल सा हमारा क्या है कंक्लूजन है कि
जो हमारे एक्शंस है ना उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। बैड, अगर हमने 10 जन्म बैड ही करे हैं तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर ले कि इस जन्म में हमें अच्छे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। पहले हमें वो बैड का सारा हिसाब क्लियर करना पड़ेगा। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है, कि पहले पास्ट एक्टिविटीज का रिएक्शंस मिलता है, उसके बाद प्रेजेंट एक्टिविटीज का फ्यूचर में जाके मिलेगा। जो कर्म आप आज कर रहे हो ना वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, और जो पास्ट में करके आए थे वो आपको आज में। तो क्लियर है? स्टोरी के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। तो अब हम राम और श्याम की स्टोरी से तो हमने समझ लिया, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। Why do we still experience the results of our past life's action? तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मैंने ये एक्टिविटी, बुरी एक्टिविटी पास्ट में करी तो मैं अभी क्यों सफर कर? सबके माइंड में आ सकता है, राइट? पास्ट में क्या, तो पास्ट में मिल जाना चाहिए। अभी जो अच्छा करो तो अभी मेरे को अच्छा मिलना चाहिए। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है कि कर्मा की जो मिस्ट्री है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम ये कभी नहीं बता सकते कि हमें कौन से कर्मा का फल कब मिलेगा, हम कभी नहीं बता सकते। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 100 जन्मों पहले के कर्मों का फल इस जन्म में मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा कर्म है, राइट? ऐसा होता है। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंट, एकदम चुटकियों में, ठीक है। मैम ने आपको चीटिंग करते हुए देखा, मैम ने थप्पड़ मार दिया खींच, इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया, राइट? अब किसी दो फ्रेंड्स की लड़ाई हो रही है, एक ने थप्पड़ मारा, दूसरे भी मार दिया, तो क्या हो गया? इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया ना दोनों को। पर ऐसी भी सिचुएशंस होती है बहुत सी जिसमें रिजल्ट हम नहीं बता सकते कब मिले। एक महीने भी मिल सकता है, एक साल में भी मिल सकता है, एक जन्म में भी मिल सकता है, और कई जन्मों में भी मिल सकता है। तो वी कांट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एनी रिएक्शन। हम किसी भी रिएक्शन का एग्जैक्ट टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो भगवान की कैलकुलेशन में होते हैं, भगवान उसको कैलकुलेट करते हैं अच्छे से। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमारा रिएक्शन प्रोवाइड करते। तो भगवान के दिमाग को समझना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, राइट? तो ऐसा होता है। यस आदित्य। मैम, महाभारत के समय में जब भीष्म पितामह तीर की सैया पर थे, तो उन्हें 100 वर्षों तक, मतलब अपने पिछले 100 जन्मों तक ये नहीं पता था कि हमने कोई ऐसा पाप किया जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिली है। जब जब उसने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तो उन्होंने बताया कि 100 जन्मों पूर्व तुमने एक सांप को अपने तीर से उठा के एक कांटों की सैया पे सुला दिया था, यस, जिस जिस वजह से तुम्हें इसके पापों का इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। थैंक यू आदित्य, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। यस। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कब का कब मिलेगा, बस हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, आदित्य ने बहुत बड़ी एग्जांपल दिया, उसी महाभारत से रिलेटेड एक और एग्जांपल, ठीक है, धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता थे, सभी को पता, हमने फर्स्ट सेशन में कवर किया है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, और 100 के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। उनके पुत्रों के मरने के बाद उन्होंने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे 100 पुत्र मारे गए, एक भी पुत्र नहीं बचा, ऐसा क्यों? तो कृष्ण ने बोला कि अच्छा, अब पता है धृतराष्ट्र के पास एक पावर थी कि वो ना अपने पिछले जन्म वो देख सकते थे। तो कृष्ण ने बोला कि चलो तुम ना अपने पिछले जन्म देखो कि तुमने क्या किया, तुम्हें पता चलेगा। तो ऐसे करते करते है ना, धृतराष्ट्र ने क्या किया, 50 जन्म देख लिए, ठीक है, पिछले 50 जन्म वो देख चुके थे। और वो बोलते कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया पिछले 50 जन्मों में कि मुझे इतना भारी रिजल्ट मिले। तो कहते, कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, 50 जन्मों तक तो तुमने कुछ नहीं किया, उससे पिछला 51वां जन्म देखना, 51st बर्थ देखो, 51st प्रीवियस बर्थ देखो। तो 51st प्रीवियस बर्थ में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो तुम्हारा 51st प्रीवियस बर्थ था, उस बर्थ में तुम एक हंटर थे, शिकारी थे,
और तुमने क्या किया था, एक चिड़िया के 100 बच्चों की हत्या की थी, एक चिड़िया के 100 बच्चों की हत्या की थी। और आप देख सकते हो 51 जन्म के बाद, 51 बर्थ के बाद जब उसके 100 बच्चे हुए तब जाके उसको उसका फल मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और फिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि ठीक है भगवान, मारने थे तो किसी भी जन्म में मार लेते, मतलब इसी जन्म में क्यों मारे मेरे बच्चे। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो संतान हुई है ना तुम्हारी 100 पुत्र, उसके लिए भी तुम्हें पुण्य चाहिए। संतान ऐसे नहीं होती, किसी के पुत्र किसी की पुत्री ऐसी नहीं होती, उसके लिए भी हमें एक अच्छे कर्म, अच्छे पुण्य कर्म चाहिए होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जन्म ऐसा था जिसमें तुम्हारे इतने पुण्य कर्म हो चुके थे कि तुम्हें 100 संतान मिल सके। और जब तुम्हें 100 संतान की प्राप्ति हो गई तो फिर वो टाइम आ गया कि तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्म का नतीजा इस जन्म में मिला और तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मारे। तो देख सकते हो आप कि कर्मा का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हम सोचे ना इसको, हम बुरा कर्म करना क्या सोचते हुए भी डरे, हम इतने कांप जाए कितना बुरा हो सकता है अगर हम बुरा करेंगे। तो आप ये सोचो, इस पर विचार करो आप सब बच्चे। उसके बाद है जैसे कि देख सकते हैं आप स्लाइड में, पास्ट कर्मा था धृतराष्ट्र का, उसने क्या किया था, चिड़िया के 100 बच्चों को मारा था, तो उसके भी 100 बच्चे मारे गए, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, कर्मा के लॉस पढ़ लिए हमने। ठीक है, कर्मा का कॉन्सेप्ट, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है, ये भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 टाइप्स की थिंकिंग जो हमारी कर्मा से डेवलप होती है। ठीक है, 2 टाइप्स के लोग होते हैं और 2 टाइप्स की उनकी थिंकिंग होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली थिंकिंग है कर्मवादी टाइप के लोग होते हैं और दूसरे होते हैं देवीवादी। ठीक है, 2 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं कर्मवाद, एक होते हैं देवीवाद। अभी कर्मवाद और देवीवाद क्या होता है इसको समझते हैं। तो जो कर्मवाद विचारधारा वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि सब कुछ है ना मेरे हाथ में। ठीक है, मतलब मैंने जो एक्शन किया मेरे को वो रिएक्शन मिल जाएगा, सब कुछ मेरे हाथ में है। और वो ना गॉड के कॉन्सेप्ट में इतना बिलीव नहीं करते हैं। तो जो कर्मवादी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सब कुछ किसके हाथ में, मेरे हाथ में। ठीक है, वो अपने एक्शंस पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते। वो ये सोचते कि मैंने मेहनत करी है तो मैं फर्स्ट आऊंगा, सिंपल है, भगवान के इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो भगवान के रोल को डिसमिस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जबकि देवीवादी लोग होते हैं वो उल्टे होते हैं, वो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो मैं मेहनत ही क्यों करूं। ठीक है, जो मैंने कर्म कर दिया भगवान फल दे देंगे। तो देवीवाद वाली थिंकिंग के लोग थोड़े लेजी होते हैं। ठीक है, चल रहा है अपना, मौज आ रही है, बिना कर्म करे सही है, लाइफ अच्छी है, तो वो है ना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। कर्मवादी लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में सब है, देवीवादी लोग कहते हैं सब कुछ भगवान के हाथ में, मैं कर्म ही ना करूं। तो दोनों की जो ये हमारी सोच है, आपको क्या लगता है कौन सी सोच बेटर है, कर्मवादी सोच अच्छी है, देवीवादी सोच अच्छी है, आपके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू थिंक, कौन सी थिंकिंग अच्छी, कर्मवादी और देवीवादी? टाइप इन द चैट बॉक्स 1 और 2, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बताओ आपको क्या लगता है कि कर्मवादी सोच वाला इंसान सही कह रहा है कि सब कुछ अपने हाथ में है, या देवीवादी सोच का इंसान सही कह रहा है कि सब कुछ भगवान के हाथ है, तुम्हें कर्म ही ना करो। नथिंग, कोई भी नहीं है। विभूति कह रही है नथिंग। आदित्य कह रहे बोथ इज गुड। ओके, आदित्य ने दोनों ही बोल दिया। ठीक है, और किसी का कोई रिप्लाई, और किसी का कोई रिप्लाई? यस, बोथ। ठीक है, तो जिसने बोला है बोथ वो भी सही है। ठीक है, और जिसने बोला है कुछ भी नहीं, वो एक तरह से मेरे हिसाब से बोथ ही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यस, तो ये दोनों ही, नायरा बोल रही है पहली वाली थिंग। ओके ठीक है, हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पहली सही है दूसरी सही। ठीक है, तो जिसने बोला कि बोथ, तो वो बच्चे सही है, दोनों ही टाइप की थिंकिंग का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये सोचे कि सब कुछ हमारे हाथ में तो हम सबसे बड़े बेवकूफ, और अगर हम ये सोचे कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं तो भी हम बेवकूफ हैं। हमारे हाथ में हमारा कर्म तो है, हमारे हाथ में हमारा एक्शन तो है। ये भगवान भी गीता में बोलते हैं कि कर्म करो,
कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम मेरे ऊपर डिपेंड क्यों हो? तुम मेरे ऊपर डिपेंड तब हो सकते हो जब तुमने अपना कर्म कर लिया, लेकिन तुम कर्म ही नहीं कर रहे हो और कह रहे हो भगवान देख लेंगे, तो वो सोच है एकदम खराब। तो भगवान क्या बताते हैं कि दोनों ही थिंकिंग का मिक्सचर होना जरूरी है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कहते हैं ना, जो कर्मवादी लोग होते हैं कि भाई मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं मेहनत करूंगा, ये है वो है, तो मेहनत करते हैं नो डाउट। कोई स्टूडेंट है, कर्मवादी सोच का स्टूडेंट है, कहता है मैं खूब पढ़ूंगा, मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा, तुम देख लेना। उसने दिन रात एक कर दी, मेहनत करता रहा, पढ़ता रहा। ठीक है, और एग्जाम वाले दिन क्या, वो बीमार पड़ गया। ठीक है, बीमार पड़ गया, कह रहे उसने बहुत मेहनत करी कि मैं ही फर्स्ट आऊंगा, लेकिन एंड मोमेंट पे वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया। तो क्या लगता है आपको, उसके हाथ में था सब कुछ? उसके हाथ में था उसकी मेहनत जो उसने करी, लेकिन उसके हाथ में और फैक्टर्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया। तो कर्मवादी सोच के जो लोग होते हैं उनको बचना चाहिए थोड़ा इस सोच से, ये सोच अच्छी नहीं है। हाँ, कर्म करो, अच्छे से करो, पूरा बेस्ट दो, उसके बाद भगवान के हाथों में छोड़ दो, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हमारे काम कभी सिद्ध नहीं हो सकते, चाहे आप कितना एड़ी चोटे का जोर लगा लेना। अगर आपका काम सक्सेसफुल हुआ तो भगवान की कृपा, और अगर आपका काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने कोई मेहनत करी, आपको रिजल्ट मिल गया ना, तो उसको भगवान की कृपा समझो, खुद को मत समझो कि मैं तो टॉप हूँ, मैंने तो अचीव कर लिया। अपने आप को क्रेडिट जो देता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। और अगर आपकी कुछ सोच थी, आपने कोई काम किया, लेकिन किसी वजह से रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो सोचना चाहिए कि भगवान की इच्छा है कि भगवान शायद इससे कुछ ज्यादा अच्छा हमारे लिए प्लान कर, राइट? तो हमें सोच के साथ कर्म करना चाहिए। तो इसी थिंकिंग को हम समझेंगे भगवत गीता के श्लोक नंबर 2.47। चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 47 है, आप सभी रीड करना। अभी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, इसको मैं रीड आउट करूंगी और आपको रीड करना है, डिसाइड करना है, प्लस याद भी करना। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रीड कर रही हूँ। इट सेज, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगो अस्तु कर्मणि। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक है 47 ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें क्या बता रहे हैं, इसका जो ट्रांसलेशन है बहुत ध्यान से सुनिए आप। भगवान बता रहे, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your activity. तो भगवान क्लियरली स्पेसिफाई करे कि तुम्हारे हाथ में है कर्म करना, लेकिन उसका फल तुम्हें क्या मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो कर्म करो, लेकिन फल के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें फल मिलेगा ना वो सिर्फ तुम्हारे कर्म पर डिपेंड ही नहीं है, वो फल बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने उस बच्चे का एग्जांपल देखो, उसने बहुत मेहनत करी लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो बीमार पड़ गया, राइट? तो और भी फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपके कर्म का रिजल्ट डिपेंड करता है। तो अपने आप को इकलौता कारण मत मानो कि मैंने पढ़ा था तो इस वजह से मैं फर्स्ट आ गया, नहीं, उसके अलावा और भी रीजंस हैं जो हम देख नहीं पाते। और भगवान कहते हैं कि कभी तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग रिजल्ट ना भी मिले ना, तो तुम्हें डिसअपॉइंट भी नहीं होना। ठीक है, कि नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तो फेल हो गया, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं। अपनी ड्यूटी जो तुम्हारी है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ह्यूमन, वो तुम्हें करती जानी है। ठीक है, उससे कभी पीछे नहीं हटना, लेकिन रिजल्ट के लिए भगवान के हाथ पे छोड़ दे। अपना एक्शन करना 100%, अपना परफॉर्मेंस 100% देना, राइट? तो पता है ऐसे जब हम करते हैं ना तो हम बड़े रिलैक्स रहते हैं। कभी करके देखना, मैंने किया है, आप भी कभी करके देखना। बीइंग अ स्टूडेंट मेहनत करो, ठीक है, अच्छी मेहनत करो, लेकिन कभी ये मत सोचना रिजल्ट ही क्या आएगा, हाय क्या होगा क्या होगा, एंजाइटी होगी, उससे डिप्रेशन हो जाएगा, तो वो मत सोचना। एकदम रिलैक्स हो जाओ, जो होगा देखा जाए। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे ना तो 100% आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आप चाह रहे हो, और आपको टेंशन भी नहीं होगी। कभी आना ये ट्राई करना अपनी लाइफ।
ठीक है। और ये थॉट प्रोसेसेस, ये विचारधारे, पॉजिटिविटी कब आती है? जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं, जब हम उनको चैंट करते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से ये क्या है, इंटरकनेक्टेड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज का सेशन था यही, जिसमें हमने कर्मा जाना, कर्मा के टाइप्स जाने, क्वेश्चन जाना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों, और लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि दो टाइप की जो थिंकिंग होती है उसमें से बेस्ट कौन है। तो कर्मवादी, देवीवादी, दोनों ही थिंकिंग का मिक्सचर बेस्ट है हमारे। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो अगर अभी किसी का डाउट है तो वो मुझसे फटाफट से पूछ सकता है, उसके बाद हम अपने सेशन को वाइंड अप करें। आज का सेशन समझ में आया सभी को? वॉज इट हेल्पफुल? वॉज इट गुड? अच्छा लगा सभी को? किसी को कोई डाउट्स हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अब अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं जिसको भी मुझसे डाउट क्लियर करना। किसी की डाउट्स हो तो फटाफट से वो अपने हैंड्स रेज कर ले। यस नायरा, यस यस यस, अपने हैंड्स शो कर दो जिसको डाउट पूछने हैं। नायरा, आपने हैंड रेज कर रखा है भाई। एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने हमको बताया था ना कि मैम, जो आपने फर्स्ट वाला हमको बताया था जिसमें गुड हैबिट्स होती है, उसका नेम क्या था? सुकर्म। ओके। मैम, जो आपने जो हमारा लास्ट वाला टाइप था, उसमें क्या होता है? अकर्म क्या होता है? बेसिकली अकर्म में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आती है, जैसे कि जो हम चैंट करते हैं, जो हम स्क्रिप्चर्स रीड करते हैं, तो वो उसमें आता है। ठीक है। ओके मैम। ओके, मैम, कैन आई लीव द क्लास? जस्ट वेट फॉर 2 minutes। ओके मैम। यस यश, जस्ट वेट 1 minute। यस यश। मैम मैम हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Do you have question or do you want to show your love? यस मैम। मैम, सबको मदद करना चाहिए। और क्या था ना, बूंदिया बढ़िया इतना। भूल गए? कोई नहीं, जब याद आ जाए ना तो मुझे मैसेज टाइप कर देना भाई। यस मैम। ओके। और किसी का कोई डाउट है? नहीं है? ओके, तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेशन हमारा थर्सडे को है, आई गेस, राइट? तो चैंट करते रहना। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग अगर किसी को कोई डाउट आ जाए एक बार फिर से देख लेना, और फिर उसके बाद मुझसे क्लियर कर देना। फाइन। So thank you all for joining today's session. Hare Krishna.